हाय बच्चों, वेलकम टू बायोमेड इजी। टुडेज टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसको पढ़ने से पहले व्हाट वी ऑल नीड टू नो अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, दे हैव सम काइंड ऑफ फ्लूइड विच इज सर्कुलेटिंग इन द बॉडी। इन फ्लूइड्स का क्या काम होता है? ईदर टू डिस्ट्रीब्यूट substances or to pick up substances from and to the various parts of the body, even to the remotest cell of the body. Circulatory system helps in transporting the materials to each and every cell of the body. Now let's go into the detail of the chapter. First and foremost topic is need for transport. What is the need for transport? See, every organ in our body requires the involvement of circulatory body fluids. For example, digestive system. जितना भी हम खाना खाते हैं, we make nutrients. Our body needs nutrients. So, the digestive system uses the blood to transport the digested nutrients to whole of the body. Second is respiratory system. Oxygen is needed for respiration and carbon dioxide is the waste product. It needs to be thrown out. Now this we are doing with the help of blood. Third is the excretory system. It also requires the body fluids. जितना भी waste body में produce हो रहा है, that needs to be removed and the blood is helping it to remove it from the body by removing the nitrogenous waste like urea. Then hormones. जितने भी hormones endocrine system में बनते हैं, they need to be carried throughout the body by circulating the blood wherever they are required into the target site. Now, coming to the circulatory system, there are three main body fluids. First is blood. It is in heart and arteries, veins and capillaries. Second is lymph. It is in the lymph vessels and lymphatic organs like the spleen. And the tissue fluid, it occurs between the cells and in the organs. Now, what is the difference between blood and lymph? इसको पहले जानो। देखो, ब्लड जो है बच्चों, दैट इज रेडिश इन कलर। लिम्फ जो है दैट इज पेल येलो इन कलर। ब्लड के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट है, इसका सेलुलर कंपोनेंट है आरबीसी। लिम्फ में आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते। ब्लड का फ्लो दैट इज बाई डायरेक्शनल, दैट मीन्स इट कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शंस, whereas lymph is unidirectional. Flow is rapid in case of blood and flow is slow in case of lymph. Now leukocyte count, it is relatively less in the blood and it is high in lymph. Here the platelets are present, whereas in lymph there are no platelets. Now broadly if we go, we'll see that the body fluids are divided into two broad categories. What is circulating and the other one is non-circulating. Circulating, as the name indicates, it circulates in whole of the body. You can make out from the name. ठीक है ना बच्चों? जैसे कि blood and lymph. Non-circulating, that means you can make out it does not circulate, it is stationary. For example, synovial fluid. It is found in the joints. जितने भी हमारे joints हैं बच्चों, उनके बीच में gap है and that is filled with synovial fluid which is stationary. And then is vitreous humor, जैसे कि हमारे eye के अंदर होता है, it is also stationary. Now first and the foremost topic of your book is blood. Now we are going to study about the blood. As you all know, blood is red in color and it is always in motion. Now it is bright red when it is taken from the artery and it is dark red when taken from the vein. Volume is 5 to 6 liters and it is saltish.
अब हाउ हैव यू टेस्टेड, मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट, लाइक अगर कोई कट आया होगा आपके हाथ में तो आपने फटाफट उस फिंगर को, जहाँ पे भी कट आया है उस फिंगर को या उस थंब को आपने फटाफट अपने माउथ में डाला होगा ब्लड को सक करने के लिए, एंड यू माइट हैव टेस्टेड इट्स सॉल्ट, राइट। और इसका pH जो है दैट इज बिटवीन 7.3 to 7.45, दैट मीन्स ये एल्कलाइन है। अगर आपको याद हो कि 7 जो है दैट इज न्यूट्रल, उससे नीचे एसिडिक, सो इट इज 7.3 to 7.45, so it is alkaline in nature. Now what are the functions of the blood? Why is blood important? Blood के functions को broadly दो part में divide कर लेते हैं. One is transport and other one is protection. Transport कैसे, जैसे मैंने पीछे आपको बताया in my first slide that जितना भी खाना आप डाइजेस्ट करते हो उससे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं. एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ अ सेल नीड्स न्यूट्रिएंट्स. व्हाई? बिकॉज आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ. वो कैसे होगा? जब तक उसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे वो रिपेयर नहीं कर पाएगी, है ना. तो उसको कौन पहुंचाएगा? ब्लड. ब्लड इज गोइंग टू टेक न्यूट्रिएंट्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि लंग्स में होती है, एंड इट अकर्स फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज. जितना आरबीसी है वो कंबाइन करता है विद द हीमोग्लोबिन एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होता है फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स, इसके अंदर हीमोग्लोबिन कंबाइन करके कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना लेता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड हीट. Now protection of the blood. Protection by the blood. The blood जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है. कैसे? Whenever there is a cut, blood forms a clot. जब आपकी बॉडी में कोई कट लगता है, आप जो देखते हो वो जगह रेड हो जाती है और थोड़ी देर के बाद खून निकलने के बाद वो जगह अपने आप एक क्लॉट बना लेती है, जिसकी वजह से ब्लड निकलना बंद हो जाता है. Now this is the first डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, फर्स्ट लाइन डिफेंस. और ये क्लॉट क्या करता है? इट प्रिवेंट्स फर्दर ब्लड लॉस. सेकेंड, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स इनटू द बॉडी. सेकेंड फंक्शन ऑफ द ब्लड इज इट द वाइट ब्लड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड, they kill the bacteria by engulfing it. That means they do phagocytosis. Third is they produce antitoxins and antibodies which neutralizes the anti-poisonous substances, Now यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया. आई होप आपने अच्छे से सुन लिया है. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव ऑन करते हैं. कंपोजिशन ऑफ द ब्लड. ब्लड किसका बना हुआ है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, प्लाज्मा एंड सेलुलर कंपोनेंट. प्लाज्मा उसका फ्लूइड पार्ट है एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55 to 60%. सेलुलर कंपोनेंट्स उसमें है आरबीसीज एंड वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 45% ऑफ द ब्लड. देखो, मेक आउट फ्रॉम दिस डायग्राम. जो प्लाज्मा है दैट इज येलो इन कलर. इसके अंदर वाटर है, प्रोटीन्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं और कुछ सब्सटेंसेस हैं. अब जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो इसमें है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड अदर सब्सटेंसेस में क्या आ जाते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फाइब्रिनोजन, हार्मोन्स एंड यूरिया. अब प्लाज्मा का वो पार्ट जिसमें से फाइब्रोजन रिमूव कर देते हैं, ये प्रोटीन है एक, इसको अगर हम रिमूव कर दें तब बन जाता है सीरम. प्लाज्मा का वो पार्ट जिसमें से फाइब्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो क्या बनता है? सीरम. व्हाट इज फॉर्म्ड? सीरम. सीरम इज दैट पार्ट दैट विच इज फाइब्रिनोजन फ्री. नाउ द सेलुलर एलिमेंट्स क्या आ गए? रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम कहते हैं आरबीसीज. WBCs दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, जिसका मेन फंक्शन है फेगोसाइटोसिस.
देन इज ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, जिसका मेन फंक्शन है इनिशिएशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये इसके ब्लड के हैं सेलुलर कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आरबीसीज। यू लुक एट दिस पिक्चर, from this picture it is very clear this is a red blood cell. See, it is biconcave. That means it is concave from both the sides, and it is flat in the center and round at the periphery. It is about 7 micron in diameter. And why it is biconcave? Because biconcavity provides a large surface area for absorption of oxygen. इसलिए बाइकनकेव है क्योंकि दोनों साइड से इट कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। आरबीसीज का साइज भी स्मॉल होता है, क्यों? क्योंकि इट कैन ईजिली क्रॉस द कैपिलरीज, किसी भी कैपिलरी में वो इट कैन ट्रेवल इजीली, तभी उसका साइज जो है दैट इज स्मॉल। एंड उसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज ऑफ 120 days. नाउ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आरबीसी इज हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर एक स्पॉन्जी बॉडी होती है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 2 पिगमेंट्स हैं, एक तो हिमेन है जिसकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, दूसरा प्रोटीन है ग्लोबिन। ये कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन which gives oxygen whenever our body needs it. कुछ amount of carbon dioxide it can also carry and form carbaminohemoglobin. अब आपने देखा होगा कि our blood is red in color. Why? Have you ever thought? क्यों है red? Because blood contains hemoglobin and that has an iron binding substance hemin. इसकी वजह से जो ब्लड है दैट इज रेड इन कलर, इसलिए नहीं कि रेड कलर सिग्निफाइज लव, इसलिए कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। नाउ वन ऑफ द टॉपिक विच यू शुड एवरीबडी शुड नो दैट देयर इज अ डेंजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। नाउ हाउ डज दिस हैपन? दैट हीमोग्लोबिन के अंदर देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो हीमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO. अब दिस कट्स द सप्लाई ऑफ द ब्लड, द कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, एंड दिस कैन रिजल्ट इन डेथ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फर्नेंसिस, बड़ी बड़ी फर्नेंसेस जिसके अंदर वेंटिलेटर्स नहीं होते हैं, उसके अंदर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होती है इट कैन लीड टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। इसका मेन कॉमन एग्जाम्पल आपने अभी रिसेंटली सुना होगा बच्चों, गैस गीजर्स। जो गैस गीजर्स लोग यूज करते हैं, अगर वो अपनी सारी विंडोज और डोर्स शट करके उसको यूज करते हैं, इट कैन लीड टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है टू कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ लाइफ एंड डेथ ऑफ द आरबीसीज। नाउ आरबीसीज जो हैं they are produced in the bone marrow and the bone marrow of the long bones. जितनी long bones हैं उसके अंदर bone marrow adults में produce होती है। embryos में it is produced in the liver and spleen. अब जो बच्चे under 5 years हैं उनकी बोन मैरो, सारी बोन्स की जितनी बोन मैरो है उसके अंदर वो प्रोड्यूस होती है। एडल्ट्स में वो मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स में प्रोड्यूस होती है, और चिल्ड्रन जो कि 5 इयर्स से नीचे हैं उसके अंदर वो सभी जगह प्रोड्यूस होती है। अब मेच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होते।
बट जब वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तब उसके अंदर न्यूक्लियाई होता है. जब वो मेच्योर हो जाते हैं देयर इज नो न्यूक्लियाई एंड इट इज नोन एज इन्यूक्लिएटेड. ना जितने भी आरबीसी ओल्ड और वीक हो जाते हैं दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो. Their iron part it is retained in the liver while the rest is excreted as bile pigment या bilirubin. Right, this is all for now. Hope you've understood the video very well. If you've not, kindly go through it and repeat it. Kindly subscribe my channel. Stay home, stay safe and start studying. Bye for now.